Okay, let's continue with our lecture series, right? Uh, so we were discussing type 6, isn't it? Almost सारे questions हो चुके टाइप 6 के, and in fact टाइप 5 और टाइप 6 जो थे वो मेंस वालों का फेवरेट है. And last year माने 2021 में as well as 2020 में they have actually focused more on the quadratic ones जो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, है ना? लेकिन उनका फेवरेट है वो फैक्टराइजेशन वाला टाइप which is type 5 and a cos x b sin x is equal to c वाला which is type 6. In fact we were discussing type 6 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लेकिन वो टाइम आउट हो गया. So let's recall that. वो कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7 is it? अच्छा, and the question is secant x plus tan x is equal to root 3, isn't it? अच्छा, usually when you look at a question something like this, the first thing that comes to our mind is probably golden rule, isn't it? So let's apply golden rule here. So secant x is 1 upon cos x plus tan is sin upon cos is root 3. ठीक है, let's cross multiply. So this becomes 1 plus sin x is root 3 into cos x. ठीक है, let's rearrange. Root 3 into cos x minus sin x is equal to 1, isn't it? अब देखो अब ये कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a cos x plus b sin x. So what do? We divide numerator and denominator by we divide the whole equation. Divide equation by root over a square plus b square, isn't it? Root over root 3 का square is 3 plus minus 1 का square is 1. So which is basically 2. Or you could also write divide by 2 on both sides. ठीक है? So this becomes root 3 by 2 into cos x minus 1 by 2 into sin x is 1 upon 2. So like I said, we usually prefer cos all the time. So यहाँ compound angle formula लगेगा. Remember when you divide, we immediately apply compound angle formula. ठीक है? तो if you wanna prefer cos, then दोनों cos होना जरूरी है. तो ये root 3 by 2 जो है ये बनेगा cos pi upon 6, isn't it? तो ये होगा cos pi by 6 cos x minus sin pi by 6 sin x. Remember ये cos 30 होता तो ये sin 30 होना जरूरी है and it is usually always the time. तो ये बन गया cos pi by 6 plus x. अच्छा, LHS में cos आ गया तो RHS में भी cos लाना पड़ेगा which is cos pi upon 3. अब ये आ गया cos x is equal to cos alpha के टाइप में फॉर्मेट में. Therefore pi upon 6 plus x is 2n pi plus or minus pi by 3. ठीक है, so ultimately इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे. तो x is equal to 2n pi plus pi by 3 minus pi by 6 है ना. हमने प्लस साइन लिया यहाँ या x is equal to 2n pi minus pi by 3 minus pi by 6 माने अल्टीमेटली x is 2n pi plus pi upon 6 और x is 2n pi minus pi upon 2 है ना. दो सॉल्यूशन है बेसिकली. अच्छा, anyway I think this was not the final question, isn't it? We wanted to find, we were asked to find yes number of solutions in the interval 0 to 3 pi है ना. अच्छा, तो remember in such cases what do? We substitute some values. जैसे कि put n is equal to 0 here. If you put n 0, x is pi upon 6, isn't it? Put n is equal to 1, what do we get? 2 pi plus pi upon 6. ये चलेगा isn't it? क्योंकि 3 pi तक चाहिए अपने को, which is basically 13 pi upon 6. ये चलेगा. If you put n is equal to 2, ये कितना हो जाएगा? 4 pi plus pi by 6 वो रिजेक्ट होगा. तो pi upon 6 13 pi upon 6 are so far the solutions. यहाँ हम डालेंगे अगेन n0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ रहा minus pi upon 2. ये नहीं चलेगा. Put n is equal to 1, x is equal to 2 pi minus pi upon 2 which is 3 pi by 2. वो ये वाला इंटरवल में है. अच्छा, put n is equal to 2, 4 pi minus pi upon 2 which is 7 pi by 2. ये नहीं चलेगा.
क्योंकि 7/2 इज 3.5 पाई, इट इज गोइंग बियॉन्ड। इसका मतलब 3 पाई/2 इज एक्सेप्टेबल, है ना? दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स डू यूजुअली, राइट? तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? 1 2 3। लेकिन ये तीसरा आंसर जो आया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस केस में, क्योंकि लुक एट द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में secant x है as well as tan x है। The moment you see secant and tan, क्या है बेसिकली कि tan का डिनोमिनेटर में होता है cos, वो जीरो नहीं हो सकता, यानी tan जो है वो पाई/2 के जो और मल्टीपल्स है वो एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन x की वैल्यू आ गया 3 पाई/2, जबकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। इक्वेशन में जैसे कि sin cos होता तो कोई टेंशन नहीं है, sin cos एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज। लेकिन यदि इक्वेशन में आ गया tan x cot x secant x cosecant x, ऑलवेज कीप एन आई, secant tan रहा ना तो cos जीरो नहीं हो सकता, माने ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 आर रिजेक्टेड। अगर इक्वेशन में cosecant cot होता तो पाई के मल्टीपल्स जो है ना, इवन पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस। तो यहाँ 3 पाई/2 एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस। लेकिन ये देखो, if you memorize standard results, this question could have been solved in like 1 minute, within a minute। वो कैसे देखते हैं? हमने डिस्कस किया था secant x plus tan x वाला, ये तो हमने 10th में ही कई बार हम कर चुके हैं ना। तो एनीवे बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये। अगर secant x plus tan x होता p, रिमेंबर, then secant x minus tan x is 1/p, isn't it? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दोनों को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, आपका मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। दोनों को ऐड किया तो 2 secant x is √3 + 1/√3, माने 4/√3। तो secant x की वैल्यू 2/√3, माने cos x की वैल्यू √3/2, दैट्स इट, है ना? एंड सिंस ये देखो, ये cos x √3/2 है, एकदम स्टैंडर्ड नंबर है, और ये देखो यहाँ x है, 2x 3x वगैरह भी नहीं है। So in such cases it is always better to go for direct principal solution, माने without actually going for general। So cos √3/2 कहाँ होता है? फर्स्ट में एंड फोर्थ में, ठीक है? फर्स्ट एंड फोर्थ, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, एंड देन अगेन 2 पाई टू 3 पाई के बीच में एक और सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नंबर 3। इन फैक्ट इफ यू लुक एट दीस वैल्यूज, पहला सॉल्यूशन होगा π/6, दूसरा सॉल्यूशन होगा थर्ड क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस π/6, और तीसरा सॉल्यूशन होगा 2 पाई प्लस π/6, है ना? 3 सॉल्यूशन आना चाहिए, यहाँ 2 ही क्यों आया सॉल्यूशन? डिड आई फॉरगेट? अच्छा, ये π/6 तो आ चुका है, और ये 2 पाई प्लस π/6, ये देखो, है ना? ओके, n0 n1, अरे हाँ, ये देखो, ये वाला वजह से क्या, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो गए, isn't it? So clearly you see this was the best way to solve this question, है ना? Sure. Okay, now we explain this. अच्छा, anyway, let's substitute this 2 pi minus π/6 कितना होता है? 11 π/6। secant 11 π/6 कितना होता है? secant 11 π/6, secant पॉजिटिव होता है इस क्वार्टर में, है ना? secant 11 π/6 का मतलब secant π/6, which is basically this itself, है ना? √3/2 प्लस tan π/6 कितना होता है? tan 11 π/6 is minus 1/2, so √3 हाँ, सॉरी ये 2/√3 होना चाहिए ना, 2/√3, तो 1/√3, ठीक है? कौन सा इसमें प्लस होगा, लेकिन tan का ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा था। अच्छा, एक मिनट,
यहाँ देखो अगेन हमने कुछ गड़बड़ किया। एनीवे ये देखो secant x is 2/√3 isn't it? और in other words अच्छा ठीक है secant x 2/√3 होता है, you know we'll have to put it back और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 2 tan x है ना, this minus this 2 tan x is √3 minus 1/√3 2/√3 so tan x is actually 1/√3 okay so क्या है कि tan x should be 1/√3 and secant x is 2/√3 okay so we did some you know मैंने our answer was only partially correct पहले जो किया था तो एक्चुअली क्या है कि these were like two simultaneous equations, ये दो simultaneous equations है जिसमें हमने सिर्फ secant x का वैल्यू निकाला तो उसके corresponding value of tan x कितना ये भी निकालना जरूरी है। तो secant x भी पॉजिटिव है और tan x भी पॉजिटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक सॉल्यूशन होगा π/6 और दूसरा सॉल्यूशन होगा 2π + π/6 माने दो सॉल्यूशन। ओके राइट ओके सो यू नो वी डिड लर्न समथिंग हियर ओके तो एनीवे ये हम सॉल्व करने वाले थे, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में ना दो वेरिएबल्स होंगे या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सैटिस्फाई होना जरूरी है ना। ये प्रॉब्लम आप टाइप 11 या 12 पे ही रखना है ना, ठीक है। एनीवे जस्ट कीप एन आई ऑन दिस कि इक्वेशन में secant tan होता तो मल्टीपल्स ऑफ π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 इज समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड मेनी अ टाइम्स ऑलरेडी। ये AMGM टाइप है। AM greater equal to GM टाइप। अच्छा तो बेसिकली क्या है AM greater equal to GM, इसमें क्या होता है सम का मिनिमम वैल्यू दे रखा होगा या प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस। रिमेंबर AM greater equal to GM में यूजुअली क्या है कि LHS इज ऑलवेज greater equal to RHS होता है, लेकिन ना क्वेश्चन में LHS is equal to RHS will be given to us, माने इक्वालिटी होल्ड कर रहा। और इक्वालिटी होल्ड कब करता है जब वो दो नंबर्स जो है वो इक्वल हो, एज सिंपल एज दैट राइट। रिमेंबर a plus b/2 is always greater equal to ab, तो क्वेश्चन में होगा कि a plus b/2 is equal to √ab, this will be given to us and remember ये पॉसिबल कब होगा only if a is equal to b, है ना। ये हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। सो दो या तीन क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके ये अपना वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस tan 90 minus theta is equal to 2, find the general solution। so let's make it x, tan x plus tan 90 minus x is equal to 2। अच्छा पहली बात tan x तो will remain as tan x plus obviously tan 90 minus x has to be cot x, so this is cot x is equal to 2। अच्छा ओके ये देखो पहली बात tan x अगर नेगेटिव होता तो cot x भी नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का सम है पॉजिटिव, माने tan x और cot x अपने आप में ऑलरेडी पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। अच्छा और वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, इसलिए रिसेंटली अपना पेपर में भी क्वेश्चन आया था इसका AMGM का। तो रिमेंबर अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 2। एक्चुअली वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए क्योंकि मिनिमम है और वो एग्जैक्टली 2 दे रहा था। और वो पॉसिबल कब होता है जब दोनों भी इक्वल टू 1 1 हो, एज सिंपल एज दैट। रिमेंबर बट यहां लिखेंगे बट वी नो दैट कि tan x plus cot x is always greater than equal to 2। रिमेंबर हाउ डू वी नो दिस,
since x plus 1 by x is always greater than equal to 2, but given that tan x plus cot x is equal to 2, this happens only when tan x is equal to cot x and they are both equal to 1. Now अभी देखो one step answer, tan x is equal to 1 है, we just have to find जनरल सॉल्यूशन. क्या रहेगा इसका? सिंपली x is equal to n pi plus, that's it, as simple as that. इसको ना अपने को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं था, ठीक है. अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा एक और क्वेश्चन, ये देखो, ये भी हम कर चुके ऑलरेडी. सो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दे वुड आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल, है ना, सून. वो क्वेश्चन ये है कि इफ sin x plus cosecant x का होल स्क्वायर प्लस cos x plus secant x का होल स्क्वायर is 9 is equal to 9, then find the general solution. है ना? Exactly. ये देखो, ये अपने को ना पता होना चाहिए और ये अपना टेंशन है टेक्स्ट बुक्स में था, है ना. तो बेसिकली क्या है, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 7 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x. और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर हम रिसेंटली किया था, पेपर में भी आया था वो. अच्छा, ये ऑलरेडी अपना नोट्स में है. am gm टाइप के वक्त हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. आपको क्या करना है, ये a plus b होल स्क्वायर एक्सपैंड करनी है, ठीक है. सो sin स्क्वायर x, यहाँ का cos स्क्वायर x विल गिव यू 1, ठीक है. 2 sin x कोसेकेंट x, sin कोसेकेंट कटेगा, आएगा 2 प्लस यहाँ 2 cos सेकेंट कटेगा, फिर से आएगा 2 प्लस. अच्छा ये देखो एक और स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, यहाँ आएगा कोसेकेंट स्क्वायर x और यहाँ आएगा सेकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 9, ठीक है. अच्छा क्या है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स नहीं है ना. तो आपको ना इसको आपको बदलना होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स आ जाए. इसका मतलब आइडेंटिटी. सो एनीवे ये 2 + 2 4 + 1 5 RHS की तरफ चला गया. तो 9 - 5 is 4 and further cosecant square x is 1 + cot square x और secant square x is 1 + tan square x. तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया. tan square x plus cot square x is equal to 2, है ना. tan square x plus cot square x is equal to 2. अगेन यू सी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका सम 2 रहा, each should be equal to 1 and 1. इसका मतलब therefore tan square x is equal to cot square x is equal to 1. But we are interested in tan square x is equal to 1, isn't it? अच्छा तो इसको हम ऐसे लेंगे क्या, tan x is equal to plus minus 1. Do we prefer that? No. स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, वो अप्लाई करेंगे. यस. तो LHS में स्क्वायर है तो RHS में भी आपको स्क्वायर लाना होगा. और ये किसका स्क्वायर होता है, π/4 का, tan π/4 का. इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, n pi is good and belongs to n. ठीक है. बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं. अच्छा एंड द लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये भी हमने रिसेंटली किया. अगेन क्वेश्चन नंबर 3, if 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x is 2 raised to 1 minus 1 upon root 2, again find the general solution. ये भी किया हमने रिसेंटली, है ना, लास्ट क्लास में किया, सॉरी लास्ट क्लास में सेंस के लास्ट चैप्टर में किया था और ये पेपर में भी आया था आगे, है ना. तो बेसिकली 2 sin x plus 2 cos x का मिनिमम वैल्यू इतना होता है ना. बट रिमेंबर फ्रॉम am gm already proved, remember from am greater than equal to gm it is already proved कि 2 sin x plus 2 cos x is greater than or equal to 2 raised to 1 minus 1 upon root 2. मतलब ये तो इक्वल है उसके साथ. इसका मतलब ये दोनों नंबर्स अपने आप में इक्वल होना चाहिए. 2 raised to sin x is 2 raised to cos x. माने बेसिस इक्वल है तो पावर शुड बी इक्वल. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया क्योंकि यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. एक में कन्वर्ट किया मैंने cos x से डिवाइड करो तो tan x 1 है,
You see again x is equal to n pi plus pi by 4. ठीक है, तो ये हो गया अपना AMGM का कहानी। और भी क्वेश्चंस यू वुड एक्सपेक्ट, जितने भी AMG के क्वेश्चंस किया वो सारे यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि ये एडवांस में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, ये इसके बाद ये कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, एडवांस में आने के बाद हमने इसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, लेट्स सी। तो ये कौन सा टाइप? 5 6। Equations involving sin x plus cos x, sin x into cos x. Now remember, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत फेमस है। ये ऑलरेडी हम कर चुके, कब? क्वाड्रेटिक के वक्त किया था। हाँ, क्या क्वाड्रेटिक किया था हमने? जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा अपने पास, उसके दो रूट्स होंगे sin x और cos x, रिमेंबर? तो इमीडिएटली हम फाइंड कर सकते हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट। और आपको ना अल्फा को एलिमिनेट करना होगा, रिमेंबर? sin अल्फा cos अल्फा, एलिमिनेट अल्फा या फाइंड कंडीशन बिटवीन a b c। तो रिमेंबर, इनको ना एलिमिनेट करने के लिए व्हाट डू वी डू? वी यूज आइडेंटिटी। व्हाट इज दैट? sin square x plus cos square x is equal to 1। तो इसको स्क्वायर करेंगे हम और sin x into cos x यहाँ यूज करेंगे, isn't it? And that's exactly what we're going to do। अगर किसी इक्वेशन में ना sin x plus cos x रहा और sin x into cos x रहा, तो what we do is we consider sin x plus cos x as t। इसको t सपोज करेंगे। अच्छा, ये कंसीडरेशन वाला तो अपना इंटीग्रेशन में भी चल रहा है ना, is equal to t। एनीवे, इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, तो ये देखो sin square x plus cos square x आएगा which is 1 plus 2 sin x into cos x which is equal to t square। तो what is अच्छा देखो, इसको ना आप sin 2x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली आएगा sin x into cos x is t square minus 1/2। ठीक है, ये याद रखना होगा, राइट? So always keep this in mind। अगर अपने पास sin x plus cos x होता और sin x into cos x होता, या remember the same can also be applicable अगर यहाँ बीच में माइनस होता, isn't it? अगर उसी क्वेश्चन में नोट, अगर उसी क्वेश्चन में sin x minus cos x होता, then you know you would still apply this, is it? How? कैसे? Exactly, sin x minus cos x अगर t होता, तो फिर ये 1 minus 2 sin x into cos x will be t square। तो sin x into cos x will be 1 minus t square upon 2। ठीक है, तो anyway sin plus cos या sin minus cos and sin into cos रहा, तो स्क्वायरिंग वाला आइडिया आना चाहिए आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। anyway, इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोर्स of the equation sin x plus cos x minus 2 root 2 sin x into cos x is equal to 0। अच्छा, anyway once we go for this substitution, इसके बाद क्या है ना, t के वैल्यूज मिलेंगे अपने को। we will be able to find the values of t। जैसे t की वैल्यूज आ गए वापस इसमें डालेंगे, और आपने नोटिस किया फिर ये a sin x plus b cos x वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, isn't it? यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे उसके लिए। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं। सो क्या रहेगा इसका अप्रोच? लेट्स पुट sin x plus cos x as t, है ना? तो ये यूज करेंगे डायरेक्ट, लेट
sin x plus cos x be equal to t, therefore इसके हिसाब से sin x into cos x is t square minus 1 by 2, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा t minus 2 root 2 into t square minus 1 by 2 is equal to 0, 2 कटेगा, t minus root 2 into t square plus root 2 is 0, so modification again, root 2 t square minus t minus root 2 is equal to 0, ये देखो ये आया क्वाड्रेटिक, ओके, रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 आएगा माइनस 2 1, माने ये रूट 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस रूट 2 0, तो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? अच्छा, यहाँ 1 कॉमन निकल रहा, इनमें से we need to take रूट 2t कॉमन, तो यहाँ बचेगा t माइनस रूट 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली t माइनस रूट 2 इंटू रूट 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं t के? therefore t इज इक्वल टू एक आ रहा रूट 2 और दूसरा माइनस 1 बाय रूट 2, इज इट? ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन नंबर 1, रिमेंबर इसके बीच में क्या साइन है? बीच में क्या साइन है? और रिमेंबर इट इज और, है ना? तो केस 1 इफ t say t is root 2, तो which is what is root 2? sin x plus cos x is root 2, so आप जानते क्या करें? we divide by root over a square plus b square, a is 1 b is 1, तो ये 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x is 1, आप चाहे तो sin में कन्वर्ट कर सकते हो या cos में, कौन सा इसमें कन्वर्ट करें? cos में, ओके, माने दोनों cos, isn't it? तो इसको मैं पहले लिखूंगा cos x cos pi by 4 plus sin x sin pi by 4 is 1, तो ये हो जाएगा cos x minus pi by 4 is equal to cos 1 कब होता है? cos 0 पे, isn't it? 0 रेडी, and therefore x minus pi by 4 is 2n pi plus minus 0, but this is anyway neglected, so x is 2n pi plus pi by 4, है ना? ये हो गया एक सॉल्यूशन। हम दूसरा यहाँ करेंगे, ठीक है? केस 2, अगर हमने कंसीडर किया t की वैल्यू एज -1/2, तो therefore sin x plus cos x is -1/2, फिर से वही फंडा, what do we do? we divide by root over a square plus b square, तो 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x, right, is equal to किससे डिवाइड किया हमने? रूट 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब RHS बनेगा -1/2, इज इट? ये -1/2 होगा, है ना, क्योंकि हमने रूट 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 into 1/2 होगा, which is 1/2, so again cos, अच्छा ऑलरेडी क्या बन रहा है? cos x minus pi by 4 हो रहा है ना, ऑलरेडी कर चुके हम LHS वाला पार्ट। अच्छा, cos -1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है pi by 3 पे, माइनस का मतलब pi minus pi by 3 which is 2 pi by 3, cos 2 pi by, therefore 2n pi plus minus 2 pi by 3 plus pi by 4, where n belongs to 2 here, this should be your final answer, ठीक है? Now they you say this is a quite lengthy question, ये in fact ये बहुत पहले आया था, बहुत पहले, वो भी ना रिटन एग्जाम जब हुआ करता था IIT एडवांस का, उनके पेपर में आया था बहुत पहले, एंड यू कुड सी कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड आई डोंट थिंक दे वुड आस्क दिस क्वेश्चन इन मेंस, है ना? तो लेकिन ये जो आइडिया था ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
राइट, ये हो गया अपना टाइप H. आई वुड से नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस आइडिया वाज इंपॉर्टेंट एनीवे. ठीक है, so we'll solve we'll probably discuss next two types in our next lecture. ठीक है, we'll stop here for this lecture.